Okay, guys, so let's solve this paper now. The Y chromosome in humans is completely inert, carries many genes, carries a few genes, contains genes of hemophilia and color blindness. It contains a few genes. ठीक है, it does not contain genes of hemophilia and color blindness. It's seen ऐसा होता है कि X क्रोमोसोम लॉन्गर क्रोमोसोम होता है, Y क्रोमोसोम शॉर्टर क्रोमोसोम होता है। तो जो यहाँ पर X क्रोमोसोम पर अगर आपके पास ये जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों जो हैं, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस हैं। ठीक है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कहते हैं इनको। अब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं अगर, तो ये तभी होंगी जब आपके पास दो एक्स क्रोमोसोम वो वाले हो जब आपके पास दोनों में आपके पास ये रिसेसिव एलील हो। लेकिन मेल्स में क्योंकि सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और उसके वो वाले सेक्शन पे ही ये वाले जीन्स मौजूद हैं, जिसके आगे जिसके सामने वाई क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम के उसके काउंटर पार्ट जीन्स मौजूद नहीं होते। तो देयरफॉर अगर यहाँ पर कोई एक भी रिसेसिव जीन आ गया, तो उसका मतलब ये है कि आपके पास क्या है, क्योंकि उसको वो बैलेंस आउट करने के लिए दूसरी साइड पे तो कोई डोमिनेंट एक्स क्रोमोसोम तो है नहीं, तो और वो वाला पार्ट ही एम्प्टी है। तो इसलिए आपके पास क्योंकि वाई क्रोमोसोम शॉर्टर है, तो वो वाला पार्ट है ही नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम तो नहीं है। तो इसलिए वो ट्रेट एक्सप्रेस हो जाती है मेल्स में। ठीक है, तो मेल्स में ये हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस वाई क्रोमोसोम के होने की वजह से होती है, लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे इसके जीन्स है, बल्कि वो इसलिए क्योंकि वाई क्रोमोसोम शॉर्टर है। सो इट कैन नॉट out it cannot suppress the X chromosome on the other side. Okay, what is not found in खुद कीजिए ये वाला, which type of chlorophyll is found in all type of algae? Chlorophyll A. ठीक है, which of the following is not related to apoptosis? Loss of tail of developing human embryos. Yes, this is apoptosis, so not the answer. Loss of tissues between developing digits. Again, apoptosis. What is apoptosis, by the way? It's programmed cell death. ठीक है, programmed cell death. Controlling the number of neurons is also apoptosis, so none of the above sahi hai. Which of the following is not parasitic fungus of plants? ये खुद ही देख लीजिएगा। Which of the following is not complete component of extracellular matrix in bacteria? Extracellular matrix, असल में आपके पास एक सेल अगर है, बैक्टीरियल सेल, उसमें सेल मेम्ब्रेन होगी, फिर सेल वॉल होगी, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स उसके बाहर होगा। राइट, मतलब स्लाइम जो होता है वो इसके अराउंड होता है, वही से एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है। सेल मेम्ब्रेन करेक्ट आंसर इसलिए होगा क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन आपके सेल का कंपोनेंट है, सेल के बाहर का कंपोनेंट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन परफेक्ट हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग? सो histoplasmosis, tuberculosis, so it is lung infection. Cystic fibrosis is a lung infection, not an infection actually. Cystic fibrosis is a genetic disease, but it's again a disease of the lungs and the respiratory tract. Histoplasmosis is also the same thing. It's not, cystic fibrosis is not an infection, okay? It's not an infection. It's again a autosomal recessive disorder in the CFTR gene. CFTR gene. Okay? Cystic fibrosis transmembrane regulator gene. में infection नहीं होता इसमें. It's a genetic defect. Which of the following is correct in humans? Both sperm and egg contain yolk. All genetic information comes from sperm. Sperm contains all does not come from sperm. Some come a half comes from egg. Sperm contains a little cytoplasm. This is true. Fertilization commonly occurs in the uterus. That's wrong. It occurs in the fallopian tube. Okay. Both of them contain yolk. ये भी मुझे गलत लग रहा है. The answer is option C. ठीक है. Sperm contains little cytoplasm. That's true. And the co-organism having wings with claws. Organism having wings with claws. Yes, ये Archaeopteryx ये बहुत ही पुराना organism था जिसके fossils मिले थे. But again, something you should do on your own. Fungus provides chemotherapeutic agent that is used to inhibit fungal growth. Well, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट जो कि फंगस ही प्रोवाइड करता है, तो ये कौन सा फंगस है ये कह रहे हैं आपसे? तो ये पेनिसिलियम फंगस होता है जो पेनिसिलिन जनरेट करता है।
वो कौन सी पेनिसिलियम कौन सा वाला है, तो यहाँ तो ऑप्शन सी दिया हुआ है, लेकिन ये खुद कंफर्म भी कर लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिलेटेड टू वैक्सीनियम, ये खुद ही कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम लिंकेज ग्रुप। यस, सो गाउट इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि ये तीनों जो हैं, ओके, वेट, गाउट को अभी वेट करते होल्ड पे रखते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज अ डिसऑर्डर, ठीक है, इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। अल्बिनिज्म ऑल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। leukemia is also a cancer, it's a cancer. So these are disorders that have occurred due to genetic defects, all three of them, right? Genetic disorders. But the last one is gout, which is due to hyperuricemia, due to increased uric acid levels in the blood, due to which leads to their deposition into the joints as well. So gout. Which of the following correctly explains the structure of myoglobin? Myoglobin में आपके पास 4 polypeptide chains and one heme group, one polypeptide chain and one heme group, यही आपका आंसर है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ही आपके हीमोग्लोबिन में होता है। मायोग्लोबिन में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एक हीम ग्रुप होता है। और अच्छा, हाँ यही है, ठीक है। मूविंग ऑन, द लेग ऑफ कॉकरोच अटैक्स हैव, ये खुद ही कीजिएगा। which component enters into the mitochondria after glycolysis? तो पायरुवेट, नहीं पायरुवेट खुद नहीं एंटर करता। लिंक रिएक्शन एक रिएक्शन होता है जो हम ए लेवल्स में पढ़ते हैं, so पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटाइल को ए, तो वो एसिटाइल को ए अंदर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस। सो द स्टफ दैट एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबर कीजिए, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा शक हो रहा है। इट्स नॉट दिस वन, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पायरुवेट आपका बन गया, देन पायरुवेट इज एक्चुअली pumped into the mitochondria, ठीक है। After it enters the mitochondria, then it will undergo decarboxylation and dehydrogenation and then combine with acetyl group to convert into acetyl CoA। एक सेकंड, ये जरा डायग्राम कंफर्म कर लेते हैं जल्दी से। जी ये कंफर्म हो गया, पायरुवेट ही एंटर करते हैं, फिर उसके बाद अंदर जाके लिंक रिएक्शन होता है इसका, ठीक है। और लिंक रिएक्शन के बाद CoA बनता है, एसिटाइल CoA, और फिर वो एसिटाइल CoA फर्दर रिएक्ट करता है। तो इसका आंसर एसिटाइल CoA नहीं है बल्कि पायरुवेट है, ठीक है। तो ये भी इन्होंने गलत किया हुआ है। What will be the approximate length of DNA strand having 500 nucleotides? तो वैसे तो हर 10 न्यूक्लियोटाइड्स का एक टर्न होता है, ठीक है। 10 न्यूक्लियोटाइड्स और एक एडजेसेंट के बीच में 0.34 नैनोमीटर्स का डिस्टेंस होता है, ठीक है। एडजेसेंट यूनिट्स के बीच में मतलब आपके पास अगर ATGC लिखा हुआ है ना, जैसे ये बेसिस चल रही है, ठीक है। तो अगर ये A है, ये T है, ये G है, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स है ना, तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में 0.34 नैनोमीटर्स का डिस्टेंस होता है। इसी तरह से अगर आपके पास 1000 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो उनका 340 नैनोमीटर्स होगा। क्योंकि ये 500 है, इसका हाफ है, तो 500 का हाफ 170 नैनोमीटर्स होता है। ये 0.34 नैनोमीटर्स की वैल्यू लर्न कर लें, तो ये 170 नैनोमीटर आपका आंसर हो गया है। वायरल डिजीज दैट इज वाइडली स्प्रेड एंड caused by enveloped RNA virus. Yes, influenza is widely spread. बहुत जल्दी से फ्लू हो जाता है, राइट। Vaccination can be done against both viral and bacterial. Yes, that is true. You can do vaccination against both of them, viral and bacterial. Useful bacteria at large intestine of humans produce vitamin K. Okay, bacteria, your normal flora produce vitamin K. Undigested food in cockroach आपको देख लीजिएगा। Type of sclerenchyma cells found in seed coat are sclerenchyma, पता नहीं क्या लिखा है, sclerenchyma होता है वैसे तो,
तो दे आर फाउंड इन स्क्लेरेट्स, से मिलता जुलता नाम है, स्क्लेरेट्स। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑफ लाइकन विच इज लीफ लाइक अपीयरेंस, ये खुद कीजिएगा। ट्राइकोम ऑफ नॉस्टॉक इज सराउंडेड बाय, ट्राइकोम इज सराउंडेड बाय, हाँ ये सही है, म्यूसिलेजिनस शीट। अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस इज म्यूटेशन। ठीक है ना, इसके अलावा नहीं हो सकता, बाकी सब भी चेंजेस हैं बट ऑल ऑफ देम अकर एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। lymph vessel empty in, lymph vessels will empty finally into the veins। ठीक है। बेसिकली स्मॉल लिम्फेटिक लैक्टियल्स होते हैं, लैक्टियल्स से लिम्फेटिक वेसल्स बनते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स से लिम्फेटिक कैपिलरीज, फिर लैक्टियल्स, फिर वेसल्स, फाइनली जाके सबक्लेवियन वेन में या इंटरनल जुगुलर वेन में जाके ये ड्रेन होते हैं। Then the helical structure of a protein is kept by the formation of hydrogen bond between amino acid molecules which are adjacent to each other in successive turns of spiral between two different polypeptide chains, none of the above। तो अगर आपके पास हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, हेलिकल स्ट्रक्चर का एक स्पेशल नाम होता है, इसको कहते हैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स भी कहते हैं। अल्फा हेलिक्स इज नोन आल्सो नोन एज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है आपके पास, वो सेम चेन में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, एंड एक सक्सेसिव टर्म्स में ही होता है, यानी कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो एवरी नेक्स्ट फिफ्थ न्यूक्लियोटाइड, यानी 4 न्यूक्लियोटाइड्स अवे जो है ना आपके पास, जो फिफ्थ न्यूक्लियोटाइड होगा उसके साथ उसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसी तरह से, और ये फिक्स्ड होता है, यानी ये पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सो ऑन। इसकी वजह से आपके पास एक स्पाइरल टर्न बन जाती है, ट्विस्टिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाती है। दिस इज नोन एज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, एंड ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर is known as alpha helix, and it occurs primarily due to hydrogen bonding, okay, within the same polypeptide chain. Remember that. Then next, tail can be regenerated in lizard and larva, both of them. ठीक है? See. Next, symptoms of malaria occur due to the formation of gametocyte, sporozoite, merozoite या oocyte। ये भी जरा बुक से देख लीजिएगा कि एग्जैक्ट आपकी बुक में क्या लिखा है। ठीक है, वैसे यहाँ तो गेमेटोसाइट दिया हुआ है आंसर, लेकिन आप टेक्स्ट बुक में कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है। Such inflorescence in which main axis is elongated and bears a sandflower, ये भी आप खुद कीजिए। Semilunar valve is not present इन वेन्स, वेन्स में होता है भाई, वेन्स में वाल्व्स होते हैं लेकिन सेमिलुनर नहीं होते। सेमिलुनर वाल्व्स कॉर्नरी आर्टरी एट द बेस ऑफ एओर्टा, बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। देखिए वेन्स में भी होते हैं, बेस ऑफ एओर्टा में एओर्टिक वाल्व्स होते हैं, और बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक जो होता है उसमें भी होते हैं, यानी पल्मोनरी आर्टरी में भी होता है। इन तीनों में आपके पास वाल्व्स होते हैं और वाल्व्स का शेप सेमिलुनर ही होता है। वेन्स में भी सेमिलुनर होता है, तो एक ही बचा है कोरोनरी आर्टरी, आर्टरीज में कोई वाल्व्स नहीं होते। तो सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस इज हेपेटाइटिस बी, वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, इसकी वैक्सीनेशन होती है, एसआईयूटी में भी होती है इसकी वैक्सीनेशन, अगर किसी को लगवानी है तो। स्केल्स आर प्रेजेंट इन फिशेस एंड एम्फीबियंस में होते हैं। देन रिडक्शन फिशेस में होते हैं स्केल्स, तो ना स्केल्स फिशेस, एम्फीबियंस में होते हैं, फिशेस में होते हैं ना, फिश एंड रेप्टाइल्स दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ, तो देख लीजिए फिर। अब इसकी की जैसी है, जो बुक में दिया है बस वो देख लीजिएगा। रिडक्शन डिविजन इज meiosis 1, okay, not meiosis 2, not meiosis 2, meiosis 2 is not reduction division, okay, mitosis is also not reduction division। reactive parts of an amino acid are कि जो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप है वही रिएक्ट करते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, बाकी जो आर ग्रुप होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते। देन thiamine कैन कन्वर्ट स्टार्च इनटू मोनोसेकेराइड तो नहीं, लेकिन हाँ ओलिगोसेकेराइड में जरूर कन्वर्ट करते हैं, यानी स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं, माल्टोज ओलिगोसेकेराइड में आते हैं। मोनोसेकेराइड के लिए फिर उसे फर्दर माल्टोज को माल्टेज के थ्रू गुजारना होता है। Process of aging can be slowed down by adequate sleep, can be slowed down by regular meal, cannot be slowed down, yeah, can be slowed down by both regular sleep and regular meal. Yeah, that's true. Planet protects itself from rapid shedding through increasing unsaturation. Planet? This is a spelling mistake, guys. Planet does not do that.
This must be the cell membrane that we are talking about. But let's see. So increasing protein content has nothing to do with the temperature regulation. However, increasing the unsaturated fatty acid does have to do something with the cell membrane. Okay, it is related to the cell membrane. Yes, unsaturated fatty acids will actually prevent the rapid chilling. But this is a ajeeb say question, to just leave it. Plant on which spores attack producers in its seeds. ये भी खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। मिसमैच पेयर ऑफ बर्ड्स भी खुद ही देख लें। ड्रोसोफिला, ये भी डायरेक्ट बुक से ही है। परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम बाय मास ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ये कंफर्म कर लीजिए कि ये वैल्यूज इनके आंसर्स पे मत जाइएगा। पिक्टोरियल फिल्स आर enlarged and again चेक कर लीजिएगा। ऑक्सीजन is transported by combining in आयरन इन हीमोग्लोबिन, ठीक है। आयरन होता है हीम ग्रुप में। ओनली वन ओवरी इज फंक्शनल एट अ टाइम इन ह्यूमन या पिजन, पिजन एंड ह्यूमन, ये खुद देख लीजिएगा। लेकिन ह्यूमंस में ये होता है कि एक मंथ में एक ओवरी से ओव्यूलेशन होती है और फिर अगले मंथ में दूसरे ओवरी से होती है। ऐसा नहीं है दो, हाँ कभी कभार ये होता है कि दोनों ओवरी से एक साथ भी निकल आते हैं एग्स, तो उसमें ये होता है कि ट्विन्स हो जाते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसीज उन्हें कहते हैं। तो अब ये देख लीजिए आपकी बुक में क्या लिखा है, जो बुक में लिखा है उसको मार्क कर लीजिए। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स फिक्स नाइट्रोजन इन सॉइल एयर इनटू अमोनिया, अमोनियो एसिड, ये पता नहीं गलत लिखा है यहाँ पर। अगर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना, तो आपके नाइट्रोजन को फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे इनटू अमोनिया, अमोनिया नहीं इनटू नाइट्रेट, नाइट्राइट करेंगे। नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, ऐसे होता है। अमोनिया का तो इसमें कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडी प्रोड्यूस विद इन द बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन इज, हाँ डोरमेंट अगर हो तो वो स्पोर होता है, एंडोस्पोर जिसको कहते हैं, जो उसे प्रोटेक्ट करता है कि हार्श एनवायरनमेंट, क्योंकि उसकी आउटर कवरिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्श होती है। And it even slows down its metabolic processes. Menstrual cycle can be divided into three phases in fact. ठीक है, एक दो ही phases होते हैं नॉर्मली तो, ठीक है। एक 4 phases, चलो ठीक है चारों phases देख लेते हैं कितने phases हैं हमारे पास। ओके गाइस, सो ये आपके पास सामने एक डायग्राम है। इसमें आप देखें मेंसेस भी एक फेज कहलाता है, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट फेज मेंसेस से ही स्टार्ट होता है। मेंसेस को कुछ लोग पीरियड्स भी कहते हैं, कुछ लोग मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। तो ये तीन अलग अलग नाम है, आ गए तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट फेज जो आता है, जो आपका सेकंड फेज होता है, वो होता है प्रोलिफेरेटिव फेज, जिसको फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही फेज के नाम है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड फेज जो आता है ओव्यूलेशन का फेज आता है, ये ओव्यूलेटरी फेज आता है। फिर लास्ट वाला जो फेज होता है उसकी क्रीटरी फेज होता है, जिसको लूटियल फेज भी कहता है। ये वो फेज होता है जिसमें कॉर्पस लूटियम बन चुका होता है, ठीक है। वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। फिर पिछले वाले फेज में आपका ईस्ट्रोजन हाई होता है, नेक्स्ट वाले फेज में आपका प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है। और यहाँ पर जो आपका ओव्यूलेटरी फेज होता है, इसमें आपके पास एलएच सर्ज होता है, एलएच हाई होता है, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर 4 फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल बन गई है, ठीक है ना। तो मेक श्योर टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है। मेंसेस, प्रोलिफरेटरी फेज, ओव्यूलेशन, सिक्रेटरी फेज। ये देखें जे सेलर, ये आप बुक से देख लीजिएगा कि इसमें किस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन डिटर्मिन की थी। मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस, आपके पास एनाफेज होता है, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर एनाफेज में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई, यानी कि आपके स्पिंडल सही से नहीं बने या कुछ, तो फिर म्यूटेशन हो जाएगी बड़े बड़े क्रोमोसोम्स की। Which of the following mitotic division is involved? तो माइटोटिक डिवीजन आपकी कहाँ होती है भाई, आपकी मियोसिस, हाँ ओवोनियम से प्राइमरी साइड भी आपकी माइटोसिस ही होती है, ठीक है। फिर इन मैक्स गिलबर्ट मेथड डीएनए थ्रेड्स आर केमिकली कट इनटू पीसेस, सही है।
If allele frequency of a dominant allele is 0.4, what will be the number of heterogeneous organisms? A population of 100 individuals with diploid traits. ठीक है. एलील फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट ट्रेट की आपके डोमिनेंट ट्रेट पी होता है जो कि 0.4 दे दी है. ठीक है. व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हेट्रोजेनस इंडिविजुअल्स यानी कि पी क्यू की का नंबर क्या होगा जो पी क्यू वाले लोग हैं. ठीक है. इफ द पॉपुलेशन इज ऑफ 100 इंडिविजुअल्स. ठीक है. हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. पी प्लस क्यू इक्वल्स वन एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपको ये पता चलता है कि पी कितना है क्यू कितना है. ठीक है. सो लेट्स सी. ओके गाइस, सो अब ये देखिएगा इसमें आपसे हेट्रोजेनस ऑर्गेनिजम्स का पूछा है, राइट. हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल अगर आपको याद हो उसमें पी जो है वो आपके पास डोमिनेंट ट्रेट होती है. क्यू आपके पास रिसेसिव ट्रेट होती है. अब क्यू कैसे फाइंड करेंगे हम इस इक्वेशन को यूज करके क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. 1 - 0.4 से तो 0.36 आ जाएगी. ठीक है. रिसेसिव ट्रेट आ गई. नहीं 0.36 क्यों आएगी 0.6 आएगी सॉरी. 0.6. ठीक है. 0.6. अब उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है आपने निकालना है. अब पी भी पता चल गया क्यू भी पता चल गया ना तो आपको अब ये पता नहीं है कि प्रोपोर्शन पी क्यू का क्या है. पी क्यू उससे कहते हैं जो जो हेट्रोजेनस हो तो पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू होगा. पी है 0.4 एंड क्यू है 0.6 सो 0.24 आ जाता है. एक सेकंड वेट कीजिएगा. ठीक है. सो ये वाला जो क्वेश्चन है ना दिस विल अकर थ्रू हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल. तो कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जरा जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं कि ये क्या था. हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के दो इक्वेशंस होते हैं. पी प्लस क्यू इक्वल्स वन और दूसरी इक्वेशन होती है पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स वन. ठीक है. ये दो इक्वेशंस में अगर आप ये पहली इक्वेशन देखें और ये दूसरी इक्वेशन देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस है. दूसरी वाली पहली वाली से डिराइव्ड है. मतलब इसका आप अगर होल स्क्वायर लगा के आइडेंटिटी से खोले तो ये इक्वेशन बन जाती है. दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जो पी है ना पी सिर्फ पी ये डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है. और सिर्फ क्यू जो है ये रिसेसिव एलील को रिप्रेजेंट करता है. अच्छा रिसेसिव और डोमिनेंट की क्या डोमिनेंट और रिसेसिव की एलील फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है. ये एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी है जो कि हमेशा आप या तो परसेंटेज की फॉर्म में देंगे या तो आप होल नंबर में देंगे. अगर होल नंबर में देंगे तो इट हैज टू बी लेस देन वन. ठीक है. दूसरी बात अब आप ये देखें कि डोमिनेंट एलील उन्होंने 0.4 दे दिया है. अगर डोमिनेंट एलील 0.4 है तो रिसेसिव एलील कितना होगा 0.6 होगा. ठीक है. देख लेते हैं इसके बारे में. ये 0.4 आपका डोमिनेंट एलील है यानी पी की वैल्यू 0.4 है तो क्यू की वैल्यू क्या होगी वन में से 0.4 माइनस हो जाएगा तो 0.6 हो जाएगा. अब इसमें से एक और बात मैं आपको बता दूं. ये जो पी स्क्वायर्ड है ना ये है फ्रीक्वेंसी एक होमोजाइगस डोमिनेंट की इंडिविजुअल की. क्यू स्क्वायर्ड जो है ये है होमोजाइगस रिसेसिव की. और टू पी क्यू जो है ये है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की. अब यहाँ बात ये हो रही है कि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है तो हेट्रोजाइगस की एलील फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2 × 0.4 × 0.6 होगी जिसका आंसर आपके पास 0.48 आ रहा है. अभी जो 0.48 है ये एलील फ्रीक्वेंसी है. टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 100 थे तो 100 में से 0.48 वो है जो कि आपके 100 के 48% वो है जो हेट्रोजाइगस है यानी कि 48% ऑफ दीज इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजाइगस. तो ऑप्शन ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा. ठीक है. Yes, that's how you solve this question. So 55 के बाद 56. How much carbon dioxide is transported through blood proteins? ब्लड प्रोटीन यानी कि हीमोग्लोबिन की बात हो रही है. हीमोग्लोबिन में एक फॉर्म होती है जिसे कहते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन. कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन ये इंतहाई कम क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड की इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है. ये सिर्फ 5% होता है. ऑप्शन ए. हाईएस्ट ब्लड प्रेशर इज फाउंड इन आर्टरीज. और कौन सी आर्टरी टू बी स्पेसिफिक एओर्टा. आप एओर्टा लिख सकते हो हाईएस्ट लेकिन आर्टरीज में हाँ हाईएस्ट में चलो
None of the given भी हो सकता है option possible. Greenhouse gases are those that prevent the heat from escaping, prevent entry of ultraviolet, and prevent rainfall. So all options are correct. Well, ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना प्रिवेंट हीट फ्रॉम एस्केपिंग होता है. सीन ऐसा होता है कि ये अर्थ है. ठीक है, अर्थ के अराउंड ग्रीन हाउस गैसेस का एक लेयर बन जाती है. तो अल्ट्रावायलेट को आने तो देती है लेकिन इंफ्रारेड को बाहर जाने नहीं देती, वो वापस अंदर आ जाती है. इसकी वजह से इंटीरियर इसका बहुत ज्यादा गर्म होने लग जाता है, जस्ट लाइक अ ग्रीन हाउस. दैट्स व्हाई ऑप्शन सी करेक्ट. दिस इज अगेन रॉन्ग. ग्रासलैंड्स ऑफ अर्जेंटीना देख लीजिएगा. जेनेटिक कॉम्बिनेशन बैक्टीरिया कैन अकर थ्रू ऑल. which bacteria are we talking about? Bacteria में तो all three of them are possible. ये conjugation में sex प्लस होती है आपके पास. ठीक है, all three सही है. Founder of cell biology देख लीजिएगा खुद ही. Then Aethioplast. ठीक है, next DNA fingerprinting इसलिए होती है. DNA सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है. स्लाइसिंग नहीं, क्लोनिंग नहीं, एनालिसिस या सीक्वेंसिंग. तो सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस भी नहीं, सीक्वेंसिंग नहीं, एनालिसिस सही है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको ये पता चलता है कि भाई फादर कौन है, मदर कौन है. ठीक है, बच्चे की डीएनए मैचेस होती है. एनालिसिस सही है. डायमीटर ऑफ डीएनए हेलिक्स इज 2 नैनोमीटर. ये फिक्स्ड है. ठीक है, 0.34 मैंने बताया था आपको, क्या था डिस्टेंस बिटवीन द बेसिस था, लेकिन डायमीटर क्या है, 2 नैनोमीटर. डायमीटर ऑफ एन आर्टरी कैन बी चेंज बाय केमिकल एंड नर्वस स्टिमुलेशन. केमिकल स्टिमुलेशन और नर्वस स्टिमुलेशन. आर्टरी का डायमीटर कैसे चेंज हो सकता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन हो सकती है, यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्शन आपकी हो सकती है. हाँ, एंटेरिक और केमिकल दोनों ही हो सकती है, बिल्कुल. नर्वस स्टिमुलेशन ऐसा हो सकता है कि आर्टरीज का अपना एक नर्वस सप्लाई होता है. ठीक है, तो सही है, बोथ केमिकल एंड नर्वस. डर्मल डेंटिकल स्केल. डार्क पर्पल और ब्लैक स्पॉट केस ऑफ, थोड़ी देख लीजिएगा. कंटिन्यूस वेरिएशन पॉपुलेशन वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय डार्विन. ठीक है. condensation of chromosome reaches to maximum during zygote, पैकेटीन, डिप्लोटीन या डायकाइनेसिस. मैक्सिमम कंडेंसेशन डिप्लोटीन पे ही चलेंगे हम. ठीक है, डिप्लोटीन एंड पैकेटीन के ही तकरीबन. नहीं, डिप्लोटीन, zygote, पैकेटीन, लेकिन डायकाइनेसिस. हाँ ठीक है, डायकाइनेसिस ही होगा ना. एनाफेज के स्टार्ट में कंडेंसेशन मैक्सिमम होगी. ठीक है. क्लोनिंग इज प्रोड्यूस बोथ जेनेटिकल identical copies of organisms by asexual reproduction. ठीक है. Carotenoids are related to vitamin A. सही है. विटामिन ए. विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं. रेटिनॉल भी कहते हैं ना विटामिन ए को. रेटिनॉल. ठीक है. रेटिनोइक एसिड. रेटिनोइक एसिड. ठीक है. अब आगे चलते हैं. रेटिनॉल, रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड तीनों हमने पढ़े थे एमबीबीएस में. ब्रायोफाइट्स ऑफ फर्न्स, ये आप देख लीजिएगा. ब्लड ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग एन एच जीनोटाइप. ठीक है. एच जीनोटाइप का मतलब है ये होमोजाइगस है. फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है. तो है ए बी फिनोटाइप. ए बी नहीं हो सकता क्योंकि एच एच है ना. आर एच की बात शायद हो रही है. तो डी होता है, शायद देखते हैं. आर एच नेगेटिव पॉसिबिलिटी हो सकती है. ए बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए बी को डोमिनेंट है, तो ये तो नहीं हो सकते. देन डू नॉट हैव एंटीजेंस अटैच्ड ऑन आरबीसीज या नन ऑफ द गिवन अबव. सो दोबारा चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है. Having and HH
जीनोटाइप्स आई थिंक दो जीनोटाइप्स हैं, एक मिसिंग है। चलो कोई नहीं, अगर ये एच एच है और अगर लेट्स से ओ है तो फिर ये आर एच नेगेटिव ही होगा। आर एच नेगेटिव ऐसे होगा, डू नॉट हैव एंटीजन अटैच ऑन आरबीसी, गलत हो जाएगा क्योंकि ए बी ओ में से ए बी में तो कोई एंटीजन हो सकता है ना। एच एच से तो हमें सिर्फ आर एच एंटीजन का पता चल रहा है। तो आर एच नेगेटिव है एच एच जब रिसेसिव हो। अगर कोई एक भी कैपिटल एच हो गया या दोनों कैपिटल एच हो गए तो फिर आर एच पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। एनवरी डैश परसेंट ऑफ फ्रूट इज लॉस्ट ड्यू टू द फंगाई। चलो ठीक है, आ गया। मैलेज इज नॉट प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। हम्म सबलिंगुअल, ठीक है। आगे चलते हैं। मंग इनवर्टिब्रेट्स व्हिच possesses the greatest power of regeneration। देख लीजिए कुछ। All of the photosynthetic bacteria use except 25% osmotic pressure of blood is maintained by albumin. Albumin is correct, but I'm not sure what was the last option. Albumin does have the major contribution to osmotic pressure. Then one NADH in respiratory chain produces 3 ATP molecules, ठीक है, क्योंकि NADH में एक हाइड्रोजन आएगा और एक हाइड्रोजन जब उस मोटर से पास होगा तो 3 ATP मॉलिक्यूल्स को जनरेट करेगा, ठीक है, फॉर ईच हाइड्रोजन। A 500-gram toothpaste sample has 0.2 gram fluoride concentration. What is the concentration of fluoride in terms of parts per million level? ये पार्ट्स पर मिलियन में जो है ना आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, तो ये भी आप खुद कर लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर soluble into each other due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो नहीं हो सकती इनमें, पहली बात, ठीक है, क्योंकि एसीटोन जो है ना, यानी कि आपके पास प्रोपेनॉन प्रोपेनॉन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो कोई चांस नहीं है। पहले क्लोरोफॉर्म में, हाँ इनमें अलबत्ता एक चीज है जो कॉमन है, जो दोनों में हो सकती है। Remember, for solubility, there must be the same type of interaction present, right? Chloride partial negative, carbon partial positive, carbon partial positive, oxygen partial negative. यहाँ भी डायपोल, यहाँ भी डायपोल। डायपोल डायपोल interaction is the best choice. ठीक है। डायपोल डायपोल are responsible for keeping them together, not hydrogen bonding. An element M forms a hydride which contains 90% by mass of M. What is the mass of M? वैसे कौन सा M हो सकता है? Let's see. अब इसके लिए जो है ना आप ट्रायल एंड एरर भी ट्राई कर सकते हो। मैं डायरेक्ट इसका जो आंसर गिवन है वो ट्राई करता हूँ। 27 सही है। अब एक 27 आई थिंक एल्यूमिनियम का है। देयर आर, लेट्स सी। M forms a hydride which contains 90% of M by mass. ओके, सो हाइड्राइड अगर बनाएगा, लेट्स से एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें AlH3, तो इसमें एल्यूमिनियम का मास कितना है? एल्यूमिनियम 27 ही होता है मेरे ख्याल से, आउट ऑफ 30 टाइम्स 100, 3 10 the 30 and 3 9 the 27। और से देखा जाए तो 90% ही आ रहा है एग्जैक्ट, इससे ऑप्शन ए करेक्ट है। सही है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप ऐसे भी कर सकते थे, XH3 और एक्स का मास आप क्या रख सकते थे? 27। 27 + 3 कितना हो जाएगा? 30, सॉरी 27/27 + 3 जगह में 30 मल्टीप्लाइड बाय 100%, इससे आपके पास मास ऑफ एक्स आ जाएगा जो कि 90% आ गया, तो मतलब यस एक्स इज 27 वाले आपका आंसर। Let's move on. Ionic compound is most likely to be found when ionization energy of high but electron affinity of B is low, ionization energy of high। देखें, ionic compound तब बनता है जब ये A है ये B है, ठीक है। A अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बी इसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज, तो एन ए इज द एनाइजेशन एनर्जी, तो ए की एनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो लो होनी चाहिए, और बी की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होनी चाहिए। बी की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होगी तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से पकड़ लेगा, ठीक है। हाई का मतलब होता है मोर नेगेटिव होगी। लेट्स सी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज लो,
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बी हाई। ये हाई किसको कह रहे हैं? मोर नेगेटिव को हाई नहीं कह रहे, शायद ये मोर नेगेटिव को लो ही कह रहे हैं। both ionization energy and electron affinity are low। तो सही है, इसको अगर ये लेस मोर नेगेटिव को अगर स्मॉलर वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, इसकी ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है, so has a more negative electron affinity। बेसिसिटी इसकी जो है ना, ये H3PO4 है, जब ये डिसोसिएट करेगा इन वाटर, ये 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अलॉन्ग विद 1 मोल ऑफ फॉस्फेट बनाएगा। ठीक है, जो ये 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है ना, यही इसके उसकी बेसिसिटी है। Basicity is the number of moles of the base that are required to neutralize it completely. 3 is the answer. Boiling of dilute HCl acids does not increase in concentration beyond 22% because HCl एक बहुत ही फ्यूमिंग लिक्विड होता है, तो बॉइलिंग मिक्सचर बना देता है 22% के आगे। Both ionic and covalent compounds bonds are present in ionic भी हो और कोवेलेंट भी हो। ऐसा कौन सा है भाई? CH4 तो नहीं है, इसमें सिर्फ कोवेलेंट है। KCl में भी कोवेलेंट नहीं है। SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NaOH। NaOH तो नहीं हो सकता, तो सब आयोनिक है, कोवेलेंट पास से आ गए। जैसे ऑप्शन ही सारे जो है ना गलत है। ये चलते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। रेट इक्वल्स के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है आपके रेट। ठीक है, कंसंट्रेशन हाई होगी, रेट फास्टर होगा। हाफ लाइफ तो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। Half life is not dependent on anything, it stays constant throughout। हाफ लाइफ पीरियड की अगर बात कर रही है, वैसे पीरियड किस चीज पे डिपेंड करता है? लेकिन फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कांस्टेंट ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। अलबत्ता आप अगर टेम्परेचर चेंज करोगे, तो टेम्परेचर से आपका रेट कांस्टेंट जरूर चेंज हो जाएगा। ओ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही 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 सही। बिल्कुल, आपका रेट कांस्टेंट चेंज होगा टेम्परेचर से। वेल, ये लेकिन बुक से कंफर्म कर दीजिएगा, पंजाब बोर्ड में इसकी इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ये वहां से देख लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन व्हिच कॉज स्मोकी फ्लेम आर कॉल्ड aromatic। ये एससीएन की पुरानी क्लासिफिकेशन है। Compressibility factor is one, then what will be the what? Incomplete question है, what will be the, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? बीटा हाइड्रोजन, इसलिए तो बीटा एलिमिनेशन कहता है। Which of the following cases the benzene rings are isolated? अकेली हो। फेनैंथ्रीन नहीं हो सकता, और ट्राइफिनाइल मीथेन, नैफ्थलीन भी नहीं हो सकता, एंथ्रासीन भी नहीं हो सकता। आई थिंक ए वाला आंसर है। एक कार्बन है, तीन फिनाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसे कहते हैं ट्राइफिनाइल मीथेन। एक हाइड्रोजन है। एंथ्रासीन का भी चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है एंथ्रासीन का भी शायद आइसोलेटेड हो। नहीं, एंथ्रासीन भी नहीं है। एंथ्रासीन इज 3 रिंग्स,
तो उसमें भी आइसोलेटेड नहीं है, तो बस यही है, ट्राई फिनाइल मीथेन इज द आंसर। ठीक है, बाकी सब आइसोलेटेड नहीं है। देन हाइड्रोजन रिएक्ट्स द अमीनो एसिड्स टू फॉर्म प्रोडक्ट व्हिच हैज कलर। कौन सा कलर होता है भाई? ब्लूइश वायलेट, सही है। तो ये डाला जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में। सोडियम बेंजोएट और रिएक्टिंग विद सोडियम लैम्प इज गोना फॉर्म बेंजीन। ये तो एक टिपिकल रिएक्शन है। चार्ज इज अ पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज। स्टार्च है ना, तो स्टार्च में आपके पास अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन मिलेंगे। और अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन आपके पास अल्फा ग्लूकोज से मिलते हैं। तो ये डी ग्लूकोज जो है यही आंसर होगा। फिर डेक्स्ट्रोग्लूकोज। लेबर और रेट हमारी बॉडी में होता नहीं है। ये फ्रक्टोज नहीं है आंसर। कम ऑन, स्टार्च, नॉट फ्रूट शुगर। देन वेट, सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। सीएच पॉइंट डिस्टेंस सबसे लॉन्गेस्ट कहाँ से है? गाइस ये जरा बुक से कंफर्म कर लीजिएगा कि ये क्या आंसर है, ठीक है इसका। चार्ज किस चीज का फॉरएवर देखे, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि अगर एमबीबीएस में ठीक भी हो ना, बुक में जो यहाँ लिखी है वो उस चीज के थ्रू आंसर आएगा, तो ये देख लीजिएगा। वर्ड लेंथ लॉन्गेस्ट उसमें होगा जिसमें वीकेस्ट बॉन्ड होगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्ड कहाँ है? इस वाले में सिंगल बॉन्ड है सारे। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो सी। The decreasing order of second ionization energy of potassium, calcium, and barium is okay. बेरियम की सबसे लीस्ट होगी। कैल्शियम की कैल्शियम से ज्यादा होगी। कैल्शियम की कैल्शियम से ज्यादा होगी, कैल्शियम की बेरियम से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एंड गोइंग टू द राइट साइड इट आल्सो इंक्रीजेस। सो बेरियम तो दोनों से नीचे से कम होगा, तो कैल्शियम पोटेशियम के राइट पे, तो उसके अगेन कैल्शियम पोटेशियम के राइट पे है। कैल्शियम की पोटेशियम से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आई गेस ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। कैल्शियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम करना चाहिए था, और फिर पोटेशियम इज ग्रेटर देन बेरियम करना चाहिए था। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी जस्ट गो विद ए। अच्छा नहीं, सही है। फर्स्ट की थोड़ी बात हो रही है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम की ज्यादा होगी, क्योंकि वो आप अंदर से आप निकाल रहे हो। ठीक है, ठीक है। Essential conditions for optical activity of an organic compound is presence of asymmetric carbon atom, जिसको chiral carbon भी कहते हैं। Yes. The formula of washing soda, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, याद रख लीजिएगा guys. Maximum number of electrons with N3 and N2 is KL। ठीक है, अब शेल है, और N इक्वल्स 3 है। K आपका S का होता है, L आपका P का होता है, राइट। तो थर्ड का P में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। नहीं वेट, क्या है? KL2 क्या कह रहा हूँ मैं? समझ समझ समझ। N3O और L2O।